We will be continuing with the topic of kinetics. In kinetics, we had covered a little ground and we had discovered that any problem of kinetics will eventually boil down to a problem that can be solved by the application of Newton's second law. So, this part that I've circled in the red is the application of Newton's second law for linear motion or translational motion. And this one is the same Newton's law applied in rotary or rotational motion. In rotation, force is replaced by a moment or torque, mass is replaced by moment of inertia, and linear acceleration is replaced by angular acceleration. But apart from that, the principle remains the same. Newton's second law says that force is equal to mass into acceleration. In rotation, Newton's second law says that torque is equal to inertia into angular acceleration. Same thing, just the parameters have to be replaced. Okay, and now we come to another principle that is included in your syllabus, which is called as D'Alembert's principle. And as it is obvious, D'Alembert is the name of the person who propounded this principle or who gave this principle. Now, what does the principle say and what role does it play in kinetics? Let us discuss that. D'Alembert's principle states that the net external forces acting on the system and the resultant inertia force are in equilibrium. Now, when you read this statement, you might not get a very good idea of what this is saying. Now, let me explain the essence of what is being said by D'Alembert here. D'Alembert is saying that let us say that there is a body, and on the body there are a certain number of forces that are acting. Okay, so there is one force horizontally forward, there is another force, and there is another force. Let us say there are four forces which are acting on a body. So D'Alembert says that first of all, you find the resultant of all these forces and try to decide in which direction this body is going to move. So there are a lot of ways that you already know of how to find the resultant of some number of forces that are simultaneously acting on a system. So one easy way to do this is to resolve all these forces along the vertical and horizontal directions and then find the summation of all the forces in the horizontal and vertical directions independently. Then the resultant's magnitude will be given by under root of summation of these two. This you already know, and you have been doing this since the beginning of your classes. And the angle at which the resultant will be inclined will be given by tan inverse of F vertical upon F horizontal. So let us say that you actually had a system of forces with four forces to start with. You found out the resultant, its inclination, and eventually you placed the resultant like this. You found out that this is the resultant, force acting on the body. Now, D'Alembert says that if a simple force in the form of a resultant is acting on the body, then the body is going to accelerate in that direction. So now what is going to happen is this body will accelerate under the action of this resultant force. And if the body has a mass of m, then there will be some certain acceleration which we do not know. And now what D'Alembert said was, you introduce a new force
in the system called as the inertia force. And what is an inertia force? According to D'Alembert, inertia force is defined as the negative of mass into acceleration. This quantity is defined as inertia force by D'Alembert. So D'Alembert said that whenever you want to introduce an inertia force in your system, you simply say that the mass of my object is m and the unknown acceleration is a, and then you introduce negative ma into the system. Now currently your system comprises of one single mass m and a resultant force r acting on m in the given direction. Now, if you want to introduce the inertia force, then what you have to do is you bring this mass into acceleration or inertia force and apply it exactly opposite to the force of resultant. And since you are always going to apply this force opposite to the direction of resultant, that is the significance of putting a minus sign here. So now when you draw the free body diagram of this M, you say that the free body diagram of mass is this. That's all. There is no other force. See, a mass and a resultant force acting on it. This is the free body diagram. Now, according to D'Alembert, if you introduce an opposite force called as inertia force in the system, which is equal to ma. Now, when you draw the free body diagram, you have to remove this plus, this minus sign. Why? Because you have already taken the negative sign by taking the reverse direction. And now, according to D'Alembert, as soon as you introduce the inertia force opposite to the direction of the resultant force, the system will become equilibrium. It will come in equilibrium. And this type of equilibrium, which is forcefully created by introducing the inertia force, is called as dynamic equilibrium. So in dynamic equilibrium, the body will be moving with some velocity, which is not of interest right now. But the thing is that the net resultant force will become equal to zero. Now, if you look at the balance of these equations, then you can say that R equal to minus m into a, sorry, or plus m into a. So what you have done is initially you had a force of r, then you added negative of mass into acceleration, and this brought your system into dynamic equilibrium. And since it is a case of equilibrium now, the resultant and the inertia force coupled together will generate zero force. This is what is meant by the statement of D'Alembert's principle. R plus minus of MA will always be equal to 0. Now, D'Alembert's principle can be applied in a lot of situations. Let us see a simple example in which D'Alembert's principle is applied. Let us take some empty space here. Okay. There is a body of weight W. It is resting on a floor. You applied some force, let us say P, in the forward direction. The normal reaction of the floor on the object is, let us say, R. And the coefficient of friction between the body and the ground is mu. अंकित थोड़ा सा धीरे बोल लो यार. So when you try to drag this body on the floor, there will be a frictional force equal to mu into r developed in the opposite direction. And now the question is, what will be the acceleration of the body
when this whole system of forces is acting. Now, obviously, in the vertical direction, the resultant of forces is going to be zero because weight is acting downwards and the normal reaction is acting upwards. And by the simultaneous action of these two vertical forces, you will see that the body is neither moving downwards nor moving upwards. So that means R must be equal to W. So R and W are in an essence cancelled out. So there is no acceleration in the vertical direction. So whatever acceleration is going to get generated is going to get generated in the horizontal direction. Now, D'Alembert's principle says since the acceleration is going to get generated in the horizontal direction, first of all, you find the resultant of the forces in the horizontal direction. So I will say that the resultant of forces in the horizontal direction is P in the positive side minus mu r opposite to it. So this is the resultant of all the forces. And now next D'Alembert says that if this is the resultant, then add the inertia force to the resultant. Now what is inertia force? Inertia force or Fi, let us say, is equal to minus of mass of the body multiplied by the unknown acceleration. This is the inertia force. So once we have calculated the resultant, we have to add this inertia force here. Now mass is not given, weight is given, but I can calculate the mass easily. So I will add the inertia force, that means plus of minus mass can be written as W upon acceleration due to gravity multiplied by acceleration A. Now what does this expression become? Resultant was P minus mu r. I added the inertia force minus ma to it, and now my system comes into dynamic equilibrium. In other words, if you want to draw the free body diagram in dynamic equilibrium, you can draw an opposite vector like this and place ma here. Now please note that I am not putting the sign of ma minus here. Why? Because in the free body diagram, I am representing it as a vector. So this is the free body diagram with the inertia force, and this is the expression with inertia force added to the resultant force. And according to D'Alembert, the sum of the resultant and inertia force is always equal to zero. Now, our task was to find the acceleration. So how do you find the acceleration? Acceleration can be found as, see, the equation is P minus mu r minus W by G equal to 0. So I will take all the quantities except, okay, what I can do is I can simply take W by G into A to the right side. So W into A upon G must be equal to P minus mu r. I will take this G and multiply it on the right side, and then eventually bring this W below here. So this is the expression for my acceleration, which was unknown. So this is how you apply D'Alembert's principle. All you have to do is draw the free body diagram, find the resultant force acting on the free body diagram, add the inertia force to it, and put the whole expression equal to 0. This is how you apply D'Alembert's principle. Now let us take one more example so that all the concepts will be clear. Rather, I will take two more examples to completely consolidate your information. Look at this example. Using D'Alembert's principle, find the acceleration of the system shown in figure below. Assume the pulley to be massless and take W1 greater than W2. So you see a simple pulley which is considered as massless and a string which is attaching two weights passing over the pulley. And since W1 is greater than W2, it is logical to expect that the acceleration will be in the downward direction for W1 and acceleration will be in the upward direction for W2. And also I can see logically that since W1 and W2 are connected to each other with the help of this string,
the value of acceleration of W2 and W1 are definitely going to be the same. They will not have different accelerations, okay, since they are connected with the same string. Now, I have to find the acceleration of the system. Acceleration of the system means acceleration of either W2 or W1. Both of them will have the same acceleration. And that is what we are calling as the acceleration of the system itself. Now, in order to do so, we will follow the same technique that we followed to find the acceleration in the previous case. What I'm going to do is I will draw the free body diagram of W1 first. So this is W1. Let us say that the tension in the string is T. Okay. W1 will act downwards since it is the weight. Weight always acts downwards. And the opposing force will be the tension in the string. It will try to pull the mass upwards. And we do not know the value of tension also. But no problem, let us see. Now D'Alembert's principle says that is there any other force acting on it? No. So what is the resultant force in the direction of acceleration? So we say the resultant force is W1 minus T. Now the next step in D'Alembert's principle is, have you found the resultant? Yes, this is the resultant. Then add the inertia force. What is the inertia force? Inertia force is always minus m into a. It is always minus m into a. This is what is added to the resultant. Now, do you know the value of mass? No. But can you calculate the value of mass? Yes. The weight is given as W1. So mass must be equal to W1 upon G. So inertia force is minus W1 upon G into A. Now I am going to add this inertia force to the resultant. And by adding, I will put a plus here for minus of W1A upon G. Now see, I found the resultant. Look at the steps. These steps have to be followed diligently all the time. Draw the free body diagram. From the free body diagram, you will know what are the total number of forces acting on the body. From the free body diagram, find the resultant. This is the resultant. Add the inertia force to the resultant. We have added it and make the whole thing equal to 0. Because D'Alembert's principle is saying that when inertia force is introduced into the system comes into dynamic equilibrium. This is what D'Alembert's principle says. So when I introduce this inertia force into the system's resultant, then dynamic equilibrium is established. That means the resultant of the inertia and the resultant of system is equal to 0. Now I have obtained this equation. Now what do I do? Let me take away some part of it. Okay. This is one equation equal to 0. Now I can make a similar equation for the other weight. Let us see how I can do that. I will draw the free body diagram of the second weight. This is W2. Weight will be obviously acting downwards. So W2 is acting downwards and tension of the rope or the thread is pulling it upwards. Now the acceleration of the second weight is going to happen in the upward direction. So what is the resultant force in the upward direction? I will write the resultant force as T minus W2, right? This is the resultant force. What is the inertia force acting on it? Inertia force is once again equal to minus of mass of the body into acceleration.
What is the mass of the body? It is W2 upon G. सर हाँ, सर इसमें टेंशन सब में सेम है क्या दोनों में? हाँ बिल्कुल सेम ही होगी, क्योंकि और कोई चीज नहीं है ना बीच में। यहां से धागा स्टार्ट हुआ, पुली के ऊपर से गया और यहाँ आ गया, बिल्कुल सेम होगी टेंशन। टेंशन वेरी तब होती है जब पुली और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाए, या फिर पुली को खुद को फ्रिक्शनलेस ना माना जाए। पुली के और जॉइंट के बीच में यहां पर अगर फ्रिक्शन हो गई तो टेंशन आपकी अलग हो सकती है। या फिर अगर थ्रेड और पुली के बीच की अगर फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाए तो टेंशन अलग हो सकती है, जैसा आपने बेल्ट के केस में किया था, याद है आपको? बेल्ट भी ऐसा ही एक केस है, एक पुली के ऊपर से ऐसे बेल्ट आती है, लेकिन बेल्ट और पुली के बीच में आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर करते हो, तो इस कारण से बेल्ट का एक साइड तो टाइट साइड बन जाता है और एक साइड स्लैक साइड बन जाता है। ये याद है आपको? यस सर। तो जब भी आपको फ्रिक्शनलेस सिस्टम ऑफ पुली एंड थ्रेड दिया जाए तो उस केस में टाइट साइड और स्लैक साइड नहीं बनते। उस केस में जो टेंशन एक एक स्ट्रिंग के अंदर पूरी कंटिन्यूअसली सेम टेंशन चलती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो सर इसमें मासलेस बोला है, फ्रिक्शनलेस तो ना बोला है। मासलेस बोलने, फ्रिक्शनलेस आपको कंसिडर करना है, इसमें इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर इट फ्रिक्शनलेस ओनली, ठीक है? यस सर। अभी मास जब आपका पुल्ली का होगा, वो अगला वाला एग्जांपल देखेंगे अपन, वो भी आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि मास होने से क्या फर्क पड़ता है। ओके, एनीवे, अभी तो आपने क्या किया, मास इज W2/G, so the inertia force acting on the second body will be minus of W2 upon G into A. Now you introduce this inertia force or add it into the resultant of the system here. तो यही काम अपन ने कर लिया, प्लस माइनस W2/G into A. अगेन व्हाट यू हैव डन इज, जैसा डीएलेम्बर्ट साहब ने कहा था, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालो और उसमें इनर्शिया फोर्स को ऐड कर दो। तो इनर्शिया फोर्स को जैसे ही सिस्टम में आपने बाहर से ऐड किया तो आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में बन जाएगी, यानी कि ये वाला जो बॉडी है ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। और जो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई उसका टोटल फोर्सेस का सम तो जीरो होना ही है, तो इसलिए राइट साइड में जीरो फिर आ गया। सो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन and this is the second equation, and I am 100% sure that you guys are now perfectly capable of solving these two equations simultaneously. तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं। देखो W1 नोन क्वांटिटी है, W1 नोन क्वांटिटी है, G नोन क्वांटिटी है। W2 is known, W2 is known, G is known. In both these equations there are two unknowns in all. Tension is unknown and acceleration is unknown, but finding of tension is not your problem at all. आपको टेंशन निकालनी ही नहीं है, तो भी आपको दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? लुक एट दिस इक्वेशन, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आज मिल जाएगी। लुक एट दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड ट्राई टू फाइंड वेदर यू गेट दिस आंसर और नॉट। ये आप पे सर आ छोड़, गया सर, आ आ गया गया सर। ना? कर सकते हैं, यस सम सर। ऑफ यू आर फास्ट इनफ, अभी इसको देख करके ही आप लोग एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मान लो ये आपके आरटीयू के अंदर भी मेंशन करने लायक नहीं है, दीज आर वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स। ये तो आपके गेट वगैरह के एग्जाम में ऐसे दो दो नंबर के क्वेश्चन में बन जाते हैं, ये तो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। तो इतना स्पीड और वो करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। एनीवे, आपने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया और एक बार देख लिया कि ये कैसे काम करता है और कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी टू फाइंड एन अननोन एक्सेलरेशन। इन रोटेशनल मोशन वी विल हैव इनर्शिया टॉर्क, जैसे इनर्शिया फोर्स होती थी उसी तरीके से इनर्शिया टॉर्क लगेगी। सो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई when you have a combination of linear motion of the mass and rotational motion of another mass. अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो, यूजिंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सस्पेंडेड वेट W. The pulley has a weight of W0. Now
Although friction is absent between pulley and thread, फ्रिक्शन नहीं अपन कंसिडर कर रहे हैं, अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पुल्ली का वेट है। तो पुल्ली का वेट हो जैसे ही आपने बोल दिया तो पुल्ली के रोटेशन का इनर्शिया आ जाएगा। नाउ लेट अस सी हाउ हाउ डू वी मेक द इक्वेशंस फॉर दिस, और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रोटरी मोशन और लीनियर मोशन को कंबाइन करने की भी। सो लेट अस सी वंस अगेन द प्रॉब्लम इज फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, देखते हैं क्या करने का है। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉब्लम कोई सी भी आ जाए, यही एक ही प्रोसीजर है आपके काइनेटिक्स के पार्ट में, बस एक ही चीज करनी है आपको। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ऑलवेज स्केच द फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो, आई हैव टेकन डाउन द जनरल गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेटिक्स आल्सो। उसमें भी स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्केच अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ऑल फोर्सेस एंड कपल्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी। तो पहला स्टेप तो चाहे डीएलेम्बर्ट लगा रहे हो चाहे न्यूटन का लॉ लगा रहे हो, यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी। सो लेट अस ड्रॉ द एफबीडी ऑफ वेट डब्ल्यू। once again let us consider that the tension T is acting on the thread। ठीक है, अब इसके पुल्ली के दूसरे साइड में कुछ नहीं है, हो सकता है धागे को यहाँ पुल्ली से ही बांध दिया हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये धागा यहाँ से यूं गया हुआ है और यो नीचे आया हुआ है, तो काम बन जाएगा। आप जैसे ही सिस्टम को रिलीज करोगे ये वेट नीचे को चलेगी और ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, एनीवे एफबीडी ऑफ वेट फर्स्ट। तो ये वेट लगाया अपन ने, डाउनवर्ड फोर्स ऑब्वियसली डब्ल्यू है, अपवर्ड फोर्स ऑब्वियसली टेंशन है। Since there is no other balancing weight on the other side, it is 100% sure that the body will accelerate in the downward direction। इसमें भी कोई शक नहीं है, और ये A ही है जो अपन को पता करना है। ठीक है, anyway the free body diagram is this। what is the resultant force? Since the acceleration is downward, we will express the resultant force as W minus T। what is the next step? Introduce the inertia force। inertia force क्या होती है? It is always mass into acceleration, the unknown acceleration। how do we get the mass of the object? weight of the object is W, so mass must be W by G। so inertia force in terms of W becomes W by G into A with a minus sign। now as always what we have to do is add the inertia force to the resultant to make the system come into dynamic equilibrium। so we add it like this, and now the system is in equilibrium। so the sum total of all these forces including the inertia force must be equal to 0। this is what Alembert says। okay, and now acceleration cannot be found using this single equation। W is given to you, so W is known, G is known to you, but tension is unknown, ये नहीं पता। so what do? We will need another equation for this। and how do we find another equation? we will find it from the application of Alembert's principle for the rotation of pulley now। so now let us see how do we do that। now we draw the free body diagram of the pulley। now pulley is not executing translational motion, it is executing rotary motion। this is the center of the pulley, and now as you see the thread is coming down from here, and this is the force that is going to cause the rotation of the pulley। this thread is pulling the pulley downwards, and the force of the thread is tangentially acting at the pulley at a distance of radius r। r of the pulley is given, so radius of the pulley is given। now according to the D'Alembert's or Newton's law, whatever you want to say, what is the resultant torque acting on the rotary part? now we will not talk about the resultant force, obviously the resultant force is T, but T is not required here। what is required is the resultant moment।
Since there is no other force acting on it and only one force T is acting, so I can simply say that the moment acting at the center of the pulley is tangential force T multiplied by R. So the moment acting on the pulley is T into R. T is the tension. Okay, that is the only force. तो जब एक ही फोर्स सिस्टम सॉरी एक ही मोमेंट अगर सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट मोमेंट भी यही हो गया. And now, according to D'Alembert's principle, what are we supposed to do with resultant moment? What we have to do is we have to add the inertia torque now. क्योंकि रोटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो कहीं पर भी फोर्स की बात नहीं होगी. देखो फोर्स की बात लीनियर मोशन में करी थी, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाला, फिर इनर्शिया फोर्स ऐड किया. अब रोटरी मोशन में क्या करोगे, पहले रिजल्टेंट टॉर्क या रिजल्टेंट मोमेंट निकालो और उसमें इनर्शिया टॉर्क ऐड करो, इनर्शिया फोर्स नहीं. नाउ हाउ डू वी राइट इनर्शिया टॉर्क, वो भी अपन आराम से we can consider the similarity between or the analogy between the linear and rotary motions. Linear motion में mass into acceleration लिया जाता था और उस पर माइनस साइन लगाया जाता था, ये इनर्शिया फोर्स बोलते थे. तो अब अपन इनर्शिया टॉर्क कैसे बनाएंगे, माइनस साइन तो लेंगे ही लेंगे, मास के जगह क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन ए की जगह क्या लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो माइनस आई अल्फा इज योर इनर्शिया टॉर्क. ठीक है, वी हैव टू ऐड द इनर्शिया टॉर्क टू द रिजल्टेंट. सो आई एम एडिंग minus of I alpha to this, and then I say that once I have introduced the inertia torque, then the sum of all the torques acting on the system, including the inertia torque, must bring the system in dynamic equilibrium, and therefore vectorially representing them should bring it to a sum of 0. So this is what I write. Now I have two equations. But now I have more problems with me than I started with. I don't know what is the value of I. I don't know what is the value of alpha. तो मैंने दो इक्वेशन तो बना ली, लेकिन अब इसमें से मैं एक्सेलरेशन निकाल के कहां से लाऊं, ये ए पता करनी थी. अब इसमें तो ए दिख भी नहीं रही मुझे, सेकंड वाली इक्वेशन में तो ए है ही नहीं, उसकी जगह अल्फा आ गई. बट नो प्रॉब्लम्स, वी ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. If I have a solid disk of mass m, what is the moment of inertia of this disk about the centroidal axis? इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? What is the moment of inertia of a disk? See, a pulley is nothing but a disk. So what is the formula for moment of inertia of a disk of mass? 4/64. No. mr square by 2. 5d raised to power 4/64 सर्कुलर एरिया का है. पुल्ली एक सॉलिड मास है जिसका मास m दे रखा है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर. ये याद रखना है आपको. स्टैंडर्ड मास के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रटे हुए होने चाहिए आपको, और खासकर इसका डिस्क का तो रट ही लो. डिस्क का और सिलेंडर का दोनों का हाफ एम आर स्क्वायर होता है. ठीक है. सो एनीवे, आई का मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. नाउ आई नो द रिलेशनशिप कि आई की जगह मेरे को क्या रखना है. आई सिंपली हैव टू प्लेस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर. अब मेरे भी दूसरी प्रॉब्लम है, अल्फा को कैसे रिप्लेस करूं. अल्फा को मैं पहचानता ही नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं, मैं भी, आप भी सब पहली बार देख रहे हो. तो अपन को तो एक्सेलरेशन चाहिए. Now go back to the same content of notes that I have already given you here. यहां पर मैंने कहीं पे आपको बता रखा है, ये देखो. Tangential acceleration in the case of pure circular motion is given by r into alpha. और ये जो एक्सेलरेशन है, ये देखो. अब इस पे आ जाओ. आपकी बॉडी इस पॉइंट पे इस टेंशन के कारण नीचे को एक्सेलरेट कर रही है. ये जो एरो दिखा रहा हूं, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और आपके वेट का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ए,
ये दोनों एक ही चीज ही तो है भाई। वेट जिस रफ्तार से, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये रोप नीचे को खींच रही है, और वही एक्सेलरेशन आपके डिस्क के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। So we can easily say that the tangential acceleration at this point of the disk is nothing but our desired acceleration A. And what is the relationship for this tangential acceleration? It is simply given by tangential acceleration is r times alpha. तो अब मेरी अल्फा क्या हो गई? आई कैन सिंपली रिप्लेस माई अल्फा विथ, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चूंकि मेरा ए खुद ही है, तो मैं सीधे सीधे अल्फा को लिख सकता हूं ए अपॉन आर। आई कैन मेक अ रिप्लेसमेंट लाइक दिस। अच्छा, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर अपने इक्वेशन में कहीं है ही नहीं। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस रिप्लेसमेंट, यू गाइस ट्राई टू फिगर इट आउट। अब यहां पर टेंशन अननोन रह गई, अब आई अननोन नहीं है, उसकी जगह हाफ एम आर स्क्वायर आ गया। एल्फा अननोन नहीं है, उसकी जगह पे ए अपॉन आर आ गया, लेकिन ए अननोन है। So once again you have equation number 1 and equation number 2, and there are only two unknowns, with one unknown being the tension, but tension is not asked in the problem, so you don't have to calculate for tension. You have to eliminate tension from the equation and find the value of acceleration. ये प्रॉब्लम भी अपने आप करें और पता करें कि क्या a की वैल्यू GW अपॉन W प्लस W0/2 आ रही है या नहीं। ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मैंने आपको बना करके दे दिए, और आई को और अल्फा को कैसे रिप्लेस करना है ये भी बता दिया। हाँ, इसमें डब्ल्यू नॉट तो है ही नहीं। W0 जो है आपका इधर आएगा। मास ऑफ डिस्क क्या है? आपको बोल रखा है कि पुली का वेट W0 है, तो ये जो मास है दिस विल बी W0/G। ठीक है, क्लियर हो गया? W0 कहां से आएगा? हुआ कि नहीं? समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। अब आप ये अपने आप सॉल्व करें, जैसे प्रीवियस वाले केस में, इस वाले केस में मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था। दो इक्वेशन बना दी, एक ये इक्वेशन है जिसमें t और a अननोन है, और एक ये इक्वेशन है जिसमें t और a अननोन है। सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड ट्राई टू फिगर आउट वेदर यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज दिस क्वांटिटी। ये मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो अपन ने अभी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगा करके। नाउ लेट अस अपना, अब देखो थ्योरी पार्ट अपना ऑलरेडी कवर्ड है, बस यही फॉर्मूले यूज होते हैं। कभी भी आपका रोटेशन इस तरह से आ जाए तो आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात की जाए, यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी थ्रेड की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक्स के अंदर 99% प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्योर सर्कुलर मोशन के होंगे, तो आपको सिर्फ इतना सा पार्ट ध्यान रखना है। ये प्योर सर्कुलर मोशन का है ना, ये देखो कहाँ था, नहीं है, ये रहा, ये स्पेशल केस फॉर प्योर सर्कुलर मोशन। तो रोटरी मोशन के लिए बस इतना सा कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, नाउ लेट अस, अच्छा अब यहां पर मैंने कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रखे हैं, लेकिन ये अपन एक एक ट्रिक को तब डिस्कस करेंगे जब अपन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी एक एक ट्रिक को मैं अगर आपको अलग से समझाता रहूंगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा कि यार ये कहाँ यूज होती है, हमें क्या पता, ऐसे ही हवा में बातें हो रही है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके तब काम में आएगी जब अपन एक्चुअली प्रॉब्लम में इनको एनकाउंटर करेंगे। तो इस कंटेंट को अभी मैं स्किप करते हुए सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आता हूं, एंड let us try to solve this simple problem. And now I want you to apply Newton's law. अभी आपने D'Alembert's principle लगाया, न्यूटन्स प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं अपन इस प्रॉब्लम से चेक करते हैं। The tractive force exerted by a railway car weighing 50 kilonewton, तो अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं? अपन एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक रेलवे कार की बात कर रहे हैं एक्चुअली, नॉट a complete train.
So let us draw this as a carriage. ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ओपोजिंग फोर्स नहीं है. ट्रैक्टिव फोर्स, लेट अस से दिस इज द इंजन. ये इंजन आगे चलने के लिए खुद ही फोर्स प्रोड्यूस कर रही है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. सो लेट अस से द ट्रैक्टिव फोर्स इज Ft which the engine or the railway carriage is producing on its own. कार का वेट कितना है? 50 किलो न्यूटन. ओके, ये भी ले लिया. एंड द ट्रैक्टिव फोर्स इज 2000 न्यूटन. ये दे रखा है द ट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय अ रेलवे कार वेइंग 50 किलो न्यूटन इज 2000 न्यूटन. तो 2000 न्यूटन की फोर्स से कार आगे चल रही है, यानी कि उतनी फोर्स जनरेट कर रही है आगे चलने के लिए. इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 5 न्यूटन पर किलो न्यूटन ऑफ द रेलवे कार्स वेट. ये बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इस बार आपको कोएफिशिएंट के टर्म्स में नहीं दी. इन्होंने बोला है कि ट्रैक और रेलवे कार के बीच में फ्रिक्शन कितना आ रहा है? पर किलो न्यूटन ऑफ वेट का 5 न्यूटन रेजिस्टेंस बनता है. तो टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? पहले तो ये बता दो आप मुझे. 500. नो, वापस से ध्यान से देखो. 250. कितना आएगा भाई? 1 किलो न्यूटन अगर वेट है तो 5 न्यूटन की ओपोजिंग फोर्स बनेगी. वेट कितना है एक्चुअली? 50 है. 50 किलो न्यूटन है. तो 1 किलो न्यूटन पे 5 न्यूटन की फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, तो 50 किलो न्यूटन पे कितनी रेजिस्टेंस होगी? सर 50. 250 किलोमीटर. 250 न्यूटन होगी. This is the frictional resistance, and frictional resistance is opposite to the tractive force. ट्रैक्टिव का मतलब है ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, जो कि 2000 दे रखी है. 250 फ्रिक्शनल फोर्स हो गई. अब सीधे सीधे आपसे पूछा है डिटरमाइन द एक्सिलरेशन व्हेन द रेलवे कार इज मूविंग ऑन अ लेवल ट्रैक. तो सीधे ट्रैक पे जा रही है. कुल मिलाकर के सीधे इतनी सी बात बता दी. वेट इसका 50 किलो न्यूटन है. फोर्स इसकी आगे को 2000 लग रही है, पीछे को 250 लग रही है. हाउ डू यू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन दिस? न्यूटन्स लॉ निकालने के लिए सबसे पहले वापस से वही सेम चीज करनी है आपको. रिजल्टेंट निकालो. तो सबसे पहली बात तो है, ये ट्रैक्टिव फोर्स आगे को लगा रही है, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इस दिशा में होगी. ठीक है. तो अब ये बताओ मेरे को, रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है? इस फिगर में देख के बताओ. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? ये एफबीडी बना दी मैंने, इसके एफबीडी बन गई. अब इसके ऊपर और कोई फोर्स आ ही नहीं रही है. 1750. ओके, दिस इज 1750 न्यूटन. कैसे आया? 2000 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस 250 ऑपोजिट टू इट. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ इफ वी वर अप्लाइंग डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, तब तो मैं इसमें माइनस एम इंटू ए को ला करके ऐड करता. लेकिन अपन अभी चूंकि न्यूटन सेकंड लॉ से कर रहे हैं, हाउ डू वी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ? वंस यू हैव फाउंड द रिजल्टेंट, यू पुट इट सिंपली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये है न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन. डी एलेम्बर्ट्स होता तो 1750 में माइनस एम ए को ऐड करते और इक्वल टू 0 पुट करते उसको. लेकिन न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं? न्यूटन्स लॉ बोलता है कि ऑल द फोर्सेस, यानी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये है न्यूटन का स्टेटमेंट. तो न्यूटन का स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो पहले रिजल्टेंट निकालो. हाँ, क्या बोल रहे हो? सर इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन को एक तरह से नेगेटिव वाले को कर रहे हैं ना इसमें. बिल्कुल वही सेम चीज है. और ये मैंने शायद आपको क्लास की शुरुआत में भी डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में कुछ बात की थी. और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जब डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पहली बार मार्केट में आया था, या जब साइंटिफिक कम्युनिटी में पहली बार इसको ओपन किया गया था, तो इस पे बहुत बहस हो गई थी. जैसे अपने पार्लियामेंट में बहस होती है ना पार्टियों के बीच में, उसी तरीके से बहस हो गई थी. काफी सारे लोग न्यूटन का पक्ष लेते थे और काफी सारे लोग डी एलेम्बर्ट्स का पक्ष लेते थे.
और न्यूटन का पक्ष लेने वाले लोगों का यही कहना था कि भाई डी एलम्बर्ट क्या कर रहा है, रिजल्टेंट को माइनस एम ए ऐड कर रहा है और उसको इक्वल टू जीरो बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, रिजल्टेंट इक्वल टू एम ए, यही तो है ना इसका मतलब। यस फिर सर। उन्होंने कहा कि ये चीज तो न्यूटन साहब ने पहले ही बोल दी, तो तुमने क्या नया बताया। समझ रहे हो अक्षित, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। और इस बात पे हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बहस हो चुकी है, और अभी भी कई सारे लोगों का ये पक्ष है कि डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा बहुत थियोरी भी लिख रखा है, ये जो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के अंदर, ये देखो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। F माइनस एम इक्वल टू जीरो क्या है, ये डी एलेम्बर्ट्स का स्टेटमेंट है। ये दोनों एक ही तो है, दे आर बोथ द सेम। बस उसमें डी एलेम्बर्ट ने ये कहा कि मैं माइनस एम ए को इनर्शिया फोर्स बोलता हूँ और उसको F में ऐड कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा साफ पूरा सिस्टम। तो ये है, इसके अंदर एक छोटा सा बोन ऑफ कंटेंशन है, बट स्टिल पीपल यूज डीएलएम्बर्ट्स लॉ। और डीएलएम्बर्ट्स के जो समर्थक थे वो बोलते हैं कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि न्यूटन्स लॉ से ज्यादा आसान लगता है डीएलएम्बर्ट्स लगाना, बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड। आपको तो डीएलएम्बर्ट स्टेटमेंट बोलना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से सॉल्व करने को क्वेश्चन देता है, जो कि आता है, you can expect some problem asking you specifically to solve it using D'Alembert's principle। तो उस केस में आप ये तर्क नहीं रख सकते कि अरे सर डीएलम्बर्ट और न्यूटन तो एक ही है, मैं न्यूटन लगा देता हूं, तो गलत हो जाएगा। भले ही आपका आंसर सही है लेकिन फिर भी आपके नंबर कट जाएंगे। आपको डीएलम्बर्ट्स आता है तो माइनस एम ए को ऐड करके दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो इट, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये मत कहना कि हमें तो इसका तर्क पता है, ये दोनों एक ही चीज है, न्यूटन्स लॉ और डीएलम्बर्ट, तो न्यूटन लॉ लगा दो डीएलम्बर्ट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मत करना। अब ये जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, ये जो प्रॉब्लम 11.4 अपन अभी कर रहे हैं, इसमें कहीं लिखा है क्या डीएलम्बर्ट से सॉल्व करना या न्यूटन से सॉल्व करना, नहीं लिखा। अपन इसको न्यूटन से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप अपनी इच्छा से सॉल्व कर सकते हो, इधर यू यूज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल और यू यूज न्यूटन्स लॉ, दैट इज योर चॉइस। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई कर दे कि इस नियम से सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर वो उसी तरीके से करना, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। सर हाँ तो मतलब अपन इज इक्वल टू एम ए रखते हैं तो न्यूटन लॉ हो जाता है, और हाँ माइनस एम ए रखते हैं इसमें इज इक्वल माइनस एम ए और रिजल्टेंट लेते हैं तो हाँ, इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो उसको अपन डीएलएम्बर्ट बोलते हैं। बस बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। चलो एनीवे अपन अभी इसको न्यूटन से कर रहे थे, तो मैं इक्वल टू एम ए रख देता हूं। अब एम कितना है बताओ इसके अंदर, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इन दिस प्रॉब्लम। सारे डेटा देख लो और देख के बताओ। अपॉन जी, है 50 अपॉन जी, नो, 50 अपॉन 9.81। थोड़ा सा और करेक्शन चाहिए इसमें, पूरा सही नहीं है। इट इज 50 50,000 अपॉन अपॉन 9.81। 9.81। देखो ये इस तरह से अपने सारी चीजें अपने को पता होने के बावजूद मिस्टेक इस तरह से होती है। किलो न्यूटन में इन्होंने चतुराई से यहाँ पर यूनिट रख रखी है, और आपको सब कुछ पता है और सिंपल प्रॉब्लम होने के बावजूद यहाँ गलती कर दोगे। भाई आप यहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगी ना, किलोमीटर में या किसी में थोड़ी आएगी। और उसी तरीके से ये 1750 क्या है, ये न्यूटन है कि किलो न्यूटन है, ये भी न्यूटन ही है। ये देखो ट्रैक्टिव फोर्स वाज 2000 न्यूटन, और माइनस कितना किया था 250 न्यूटन, तो 1750 तो न्यूटन है। तो आप इसको अगर मास को निकालने के लिए 50 बाई कर देते हो, तो ये मास जो है आपकी गलत निकल के आ जाएगी। यू हैव टू कन्वर्ट दिस 50 किलो न्यूटन इनटू न्यूटन। सो 50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.81 इज द मास। दिस इज योर एम। अब इस मास को यहां पर रख लो, और एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन इज सिंपली 1750 डिवाइडेड बाय मास। ये सिंपल प्रॉब्लम थी बिल्कुल ही, बस इसमें ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसमें आपको फंसा लिया जाता है, इसका ध्यान रखना है बस, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली कवर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो।
particle of mass 1 kg moves in a straight line under the influence of a force which increases linearly with time, यानी कि अब देखो ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है. Force is increasing linearly with time at a rate of 60 Newton per second. ठीक है. At time t equal to 0, the initial force may be taken as 50 Newton. तो अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या करने का है. सबसे पहले तो फोर्स की एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी. अब इस चीज के बारे में कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जानकारी कहीं भी नहीं है. यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर फोर्स. क्योंकि फोर्स जो है कोई 200 न्यूटन 500 न्यूटन करके फिक्स करके एक पुल की तरह नहीं दे रखी जैसा कि इस प्रॉब्लम में था. इस प्रॉब्लम में आपको बता रखा है ट्रैक्टिव फोर्स 2000 न्यूटन फिक्स है, यानी 2000 की फिक्स्ड फोर्स से खींचा जा रहा है उसको. इस केस में ऐसा नहीं है. तो अब अपन फोर्स को कैसे बनाएंगे. गिवन इंफॉर्मेशन से शांति से बैठ के तसल्ली से सोचो तो ज्यादा आपको पैनिक नहीं होने की जरूरत है. ये बोल रहा है t इक्वल टू 0 पे फोर्स कितनी थी 50. ठीक है, पहले इसको ले लो. एट t इक्वल टू 0 योर फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन. अब अगला क्वेश्चन यही आता है कि t इज इक्वल टू 0 से जब टाइम आगे निकल जाएगा और कोई रैंडम टाइम t आ जाएगा तो फोर्स कितनी है. ये बोल रहा है द फोर्स इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम एट अ रेट ऑफ 60 न्यूटन पर सेकेंड. तो इसका मतलब है जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो फोर्स अपनी 50 के साथ में 60 न्यूटन और ऐड कर लेगा. 2 सेकेंड होगा तो 60 इंटू 2 50 में ऐड हो जाएंगे. 3 सेकेंड होगा तो 60 इंटू 3 50 में ऐड हो जाएंगे. तो इसको देखते हुए क्या मैं सीधे सीधे फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप बता दो. दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द फोर्स कैन बी गिवन बाय 50 प्लस 60 टाइम्स t. यस सर. बस ये मैथमेटिकल लॉजिक पकड़ना है, बाकी इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत है ही नहीं. अब आपने फोर्स बना ली. अब ये बोल रहा है क्या क्या चाहिए इसको. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 4 सेकेंड्स आफ्टर इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन. यानी कि रेस्ट से स्टार्ट किया तो यानी कि रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0 हो गई और उसके बाद ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालो जब पार्टिकल 4 सेकेंड अपनी ट्रैवलिंग कर चुका हो. कोई दिक्कत नहीं है. इस प्रॉब्लम में भी आपको क्या करना है, वही सेम काम करना है. न्यूटन का सिद्धांत कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सीधी सी बात है. अब फोर्स कहां से लाओगे, ये रही आपकी फोर्स, ये आपने फोर्स बना के रख लिया. तो मैं लिख देता हूं यहां पे 50 प्लस 60t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मास दे रखी है क्या प्रॉब्लम में, जरा देख के बताओ. यस सर 1 kg. 1 kg है तो मास 1 हो गया, 1 इंटू एक्सेलरेशन हो गया, तो ये एक्सेलरेशन ही बन गया पूरा एक्सप्रेशन. ठीक है. यस सर. अब मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर पार्टिकल हैज मूव्ड 4 सेकेंड. क्या आपको आंसर डायरेक्टली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. यस सर. क्या करोगे 4 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए. फोन रख दोगे सर. तो t की जगह 4 पुट कर देंगे बस. t की जगह 4 पुट कर दो. कितना आंसर आ रहा है ऐसे ही वर्बली बता दो मेरे को. 290 मीटर ये आ गया आंसर आपका. एक्सेलरेशन इज 290. यस सर. अब मेरे को कोई बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूं. Acceleration is given as 50 plus 60t. How do I find the velocity at 4 seconds? सर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे. Okay, that is a very good hint. सबसे पहले तो आपको क्या करने का है, एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करो dv by dt में. अब आप लोगों को मैं उस हिंट पे ले चलता हूं जो मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी बता रखा है. द फॉलोइंग रिलेशंस कैन कम इन हैंडी मेनी टाइम्स. ये देख रहे हो आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी बनाने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा. और कुछ क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s अपॉन dt स्क्वायर, या कुछ केसेस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई ds.
एक्सेलरेशन के ये तीनों डेरिवेटिव एक्सप्रेशंस जो हैं अपने माइंड में स्टोर करके रखो, क्योंकि इनकी जरूरत आपको किसी भी वक्त आ सकती है, जैसे कि अपन को यहां पर काम में आ गई। तो एक्सेलरेशन को अपन को डिस्टेंस निकालनी होती तो फिर मैं इसको ये फॉर्मूले से रिप्लेस कर देता। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए और टाइम का फंक्शन है तो मैं dv बाई dt यूज करूंगा। तो ये लॉजिक आपने यूज किया और एक्सेलरेशन को dv बाई dt से रिप्लेस किया। एंड नाउ आई कैन राइट dt को मैं ले जाके यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर अकेला dv रह जाएगा। सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ इज dv इक्वल टू 50 प्लस 60t होल मल्टीप्लाइड बाय dt। अब क्या करना है इसको, इससे मेरे को वेलोसिटी कैसे मिलेगी बताओ? सर इंटीग्रेट इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन। वी विल इंटीग्रेट इट। अब आपको पता है दोनों साइड में इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन इनकी लिमिट क्या लगेगी? देखो, राइट साइड में इंटीग्रेशन वेरिएबल टाइम है, और टाइम किधर से किधर तक वेरी हो रहा है? 0 से लेके 4 सेकेंड तक। सो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द राइट साइड आर 0 to 4। What are the limits of integration on the left hand side? Velocity के लिए क्या है? इसका हिंट यहां मिलता है, started from rest। तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी है? at t is equal to 0 what is velocity? जीरो It is 0। जीरो। और 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी ये मुझे पता नहीं, तो मैं v लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है आपका। वंस यू गेट इट you will get the value of v। कितना आ रहा है? 680 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब देखो कहानी जैसा मैंने आपको कल की क्लास में, पिछले क्लास में भी बताया था, इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड f is equal to ma। even d Alembert said that f minus ma is equal to 0। वही बात हो गई, f is equal to ma कह लो या f minus ma equal to 0 कह लो, इस एक इक्वेशन से कहीं बाहर जाएगी ही नहीं आपकी पूरी कहानी। और एक बार अपन अब नेक्स्ट क्लास में आकर के ये आगे की सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे, तो आपको रोटरी मैकेनिक्स के, लीनियर मैकेनिक्स के, पुल्ली के, देखो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जैसे भी आ जाएंगे प्रॉब्लम, उन सब में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो यही कहूंगा कि ये 10 क्वेश्चंस को लेकर के मैंने आपके काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट 90% स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है। बट स्टिल आरटीयू की प्रॉब्लम कहां से बन के आ जाए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, ये सिर्फ आरटीयू वाले जानते हैं और भगवान जानता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी है, और वेन एवर यू गेट टाइम, मैकेनिक्स में तो देखो पूरी प्रैक्टिस है बेटा। प्रैक्टिस टीचर 1 घंटे की क्लास में कितना करा सकता है, ये आप भी जानते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू दैट। पूरी की पूरी आपकी स्कोरिंग जो है ये आपकी प्रैक्टिस और आपकी सिंसियरिटी पे ही डिपेंड करता है, टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं है। और अभी भी मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो कि कुछ भी नहीं सुन रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर सीरीज। जब से अपनी मैकेनिक स्टार्ट हुई है, आदत ही हो गई है। इनमें कई सारे जनों के मैं नाम बुलाऊंगा तो कोई सुन भी नहीं रहे हो, नहीं सुन रहे हो, गॉड ओनली नोज। लेकिन मैं इतनी ज्यादा तहकीकात करने जाता भी नहीं हूं। जिसको पढ़ना नहीं है मैं उसके कान पकड़ के पढ़ाने में विश्वास भी नहीं रखता हूं। बट those who are listening, you are actually gaining on your own behalf। और जो नहीं सुन रहे हैं वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि एंड में जाकर के मैकेनिक्स एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, कोई नहीं पढ़ सकता, देख लो आप भी जानते हो, इट इज अ टफ सब्जेक्ट। सो प्लीज कीप अप द प्रैक्टिस वर्क ऑन योर ओन। आप अपने लेवल पे किताबों से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड आई विल टेक द अटेंडेंस। प्लीज डोंट गो अवे राइट नाउ।